हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो पढ़ा था। उसमें साइन कन्वेंशन और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। नाउ वी टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन किरचॉफ सेकंड लॉ। तो दिस इज एग्जाम्पल इज 6.3। एग्जाम्पल 6.3 there is a cubical network. This is a cubical network of resistors of 1 ohm. There are 12 resistors which are connected edge of this cube. Each resistance is 1 ohm, but here we consider capital R. So each resistor of we consider R, but given 1 ohm. Now this point is connected with 10 volt battery plus minus EMF E equal 10 volt, and A, B, C, D, E, F, G, H. Each resistor is of 1 ohm. We have to find out what is equivalent resistance of this network and what is the value of current flowing through this circuit. दो चीजें फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड फ्लोइंग करंट. But we consider current flowing through this battery is 3I. For convenience, we can take 3I. Also we can put I, but at this point distribution will be 4I, I by 3, I by 3, I by 3. So calculation can be complicated. So we consider for convenience flowing current is 3I. Clear? Then by using Kirchhoff's law, this current will be I. All resistors are equal strength, and due to symmetry of the circuit, 3I current at this point is distributed in II. यहाँ I current हो गई, यहाँ भी I हो गई, यहाँ भी I हो गई, but I current here I by 2, and in this I by 2. This I current in this portion will be I by 2, in this portion will be I by 2. This I current in this portion will be I by 2, in this portion will be I by 2. Clear? Now I by 2 and I by 2, again this current will be I. This current here, this current will be कितनी आ रही है I by 2. तो फिर ये करंट आपके पास में जो है I by 2 है,
तो इधर से I/2, तो ये करंट कितनी हो गई, I हो गई। तो फिर ये करंट भी I/2 इधर से आ रही है, I/2 इधर से आ रही है, तो ये करंट भी I हो गई। तो फिर I अगेन टोटल करंट इज 3I। ठीक, तो यहां करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फ्लोइंग करंट 3I। कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर बाय यूजिंग वी कंसीडर ए क्लोज्ड लूप ABCGA एंड ट्रेवलिंग डायरेक्शन इज दिस। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं इन क्लोज्ड लूप A B C G A by using KSL, Kirchhoff's second law. So we start from point A. Now this is loop. So Thawing current is I, resistance R, then potential difference IR, but traveling direction and current direction both are same. So potential difference is taken as negative, minus IR. Now there is I/2 and resistance R. So I/2 into R, this will be potential difference, but this will be negative. Now I into R minus IR, traveling direction and current direction same. Next we enter from negative and exit at positive, then EMF E will be positive, so plus E. Again we reach at point A, so this is equal to 0. Now E equal to IR plus I/2 into में R and E equal LCM ले लें तो this will be 5/2 IR. This is equation first. So by using Kirchhoff's second law in closed loop ABCGA, we find E equal 5/2 IR. Clear? Now if we suppose the equivalent resistance of this network is R equivalent between A and G. So we take this is equivalent circuit. This point is A, this point is H, and this is R equivalent. Now point A, this point is G, and battery is connected between A and G. This is plus minus E equal 10 volt and E equal 10 volt, and flowing current is same 3I. But this is R equivalent. इन सभी रेजिस्टेंस का मुकाबला करने वाला यही है, A और G के बीच में हमने ये कंसीडर कर दिया। तो फिर इन फॉर इक्विवेलेंट सर्किट बाय यूजिंग ओम्स लॉ, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट बाय यूजिंग ओम्स लॉ. So what is the result? This is E equal current is 3I into resistance R E equivalent. General formula is IR, but in this step we take 3I किसके जगह, I की जगह, और रेजिस्टेंस इतना है तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं. This is equation second. Now by using first and second, so 3I Req equal 5/2 IR.
now I is cancel out. We have to find out R equivalent. So this will be 5/6 into R. Clear? This is equivalent resistance, but R equal 1 ohm. This is given in the question, but R equal 1 ohm, then R equivalent equal 5/6 into 1 equal 5/6 ohm. ये R equivalent की वैल्यू आ गई. दिस इज इक्वेशन 3. ठीक, तो इसका मुकाबला करने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास 5/6 R होगा. तो अब यहाँ R की वैल्यू हम कुछ भी, ये तो 1 ओम गिवन थी, लेकिन यदि 2 ओम 3 ओम कुछ भी गिवन हो तो हम ये रिजल्ट याद रखेंगे. R इक्विवेलेंट 5/6 इनटू में R होता है, तो R की वैल्यू पुट करके हम किसी भी रेजिस्टेंस के लिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी फ्लोइंग करंट थ्रू दिस सर्किट, तो वो कितनी होगी वो हम देखें. तो फ्लोइंग करंट जनरल फार्मूला I इक्वल V अपॉन R, बट करंट इज 3I. V अपॉन R, voltage 10 upon resistance R equivalent. This is equation 4. So by using 3 and 4, 3I equal 10 upon 5/6, 5R by 6. 5 to the 10. So 3I will be 12 upon R. But this is equation 5th. ये फ्लोइंग करंट आ गई, but R equal 1 ohm. This is given. So 3I equal 12 upon 1. So this is 3I equal 12 एम्पियर. इसका मतलब सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी, 12 एम्पियर फ्लो होगी. और प्रत्येक ब्रांच में यहां जाते ही कितनी हो जाएगी, तो फिर हम तीन जगह डिवाइड करते हैं इसको, तो 12 अपॉन 3 इक्वल 4 एम्पियर. 4 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर. इस तरीके से हम ये टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यू कैन नोट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये बोर्ड में भी आई हुई है, तो आप इसे नोट कर लीजिए. यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फ्लोइंग करंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ कैपिटल R की वैल्यू 1 ओम दी गई थी, वो इसलिए मैंने रखी है, लेकिन शुरू में हम कैपिटल R लेकर के चल रहे हैं. Now we take next article, Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है. क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो साइड्स हैं उसमें 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और डायगोनली एक गैल्वेनोमीटर उसमें लगा हुआ हो, तो फिर ऐसे सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें उसकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल से वर्ड्स में हम यही कहेंगे. तो क्या डेफिनेशन बनेगी?
देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स जो है, ये रेजिस्टेंस जो है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एन अरेंजमेंट ऑफ four registers in quadrilateral form। किसकी फॉर्म में? इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, which can be used to measure unknown resistance in terms of remaining 3 registers, in terms of remaining 3 registers। तो an arrangement of 4 registers in quadrilateral form which can be used to measure unknown resistance in terms of remaining 3 registers। ठीक है, तो ये 4 रेजिस्टेंस का एक सर्किट है, वो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में, और इसकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी किसमें? बाकी बचे हुए 3 जो रजिस्टर्स है उनकी फॉर्म में। तो फिर व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल? सो वी कंस्ट्रक्ट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यू कैन नोट दिस डेफिनेशन, construction and principle। construction and principle। तो फिर मैं पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इसका, मेकिंग there are 4 registers P, Q, R, S, terminal A, B, C, D। And this is battery of EMF E, key K1, this key K2, clear? This is combination of or arrangement of 4 registers P, Q, R and S in quadrilateral form। P, Q and R known resistors and capital S unknown resistance। So we can find out value of this unknown resistance in terms of remaining 3 resistors P, Q and R। Clear? Now if we insert key K1 and key K2,
then a current, suppose I, flows through this circuit. So there will be, suppose, current I1, this is I2. I can be divided into two parts at point A. We can use here Kirchhoff's first law, जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी. But at this point Ig passes through galvanometer and remaining current I1 minus Ig passes through resistor Q. But here Ig and I2 will be I2 plus Ig. But at point C, I1 minus Ig and I2 plus Ig, Ig cancel out, again I1 plus I2, so this current will be again I. तो I किसके इक्वल थी? I1 plus I2. अगेन I1 माइनस Ig में ये हम करेक्ट कर दें तो Ig कैंसिल हो जाएगा, I1 plus I2 बच जाएगा, जो किसके इक्वल है? I के. इसका मतलब हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो किसको ध्यान में रख करके किया है? वो हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ध्यान में रख करके किया. ठीक है. नाउ हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ लिखते हैं. देखिए क्या, इन फिगर there are 4 resistors P, Q, R and S, which are connected insides AB, BC, AD and CD, which are connected insides AB, BC, AD and CD of quadrilateral ABCD. ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्वाड्रिलेटरल ABCD. क्लियर? बैटरी connected between terminal A and C and galvanometer with key K2 is connected between terminal B and D. तो बैटरी E is connected between terminal A and C with key K1 and galvanometer. What is galvanometer? This is instrument which is used to measure electric current and direction of electric current in an electric circuit. And galvanometer G is connected between terminal B and D with key K2. देखो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है विद की K2. तो फिर ये हमारे पास में जो है रेजिस्टर्स कहां कहां कनेक्टेड है ये हमने लैंग्वेज में लिख दी. ये कंस्ट्रक्शन हो गई. नाउ अगली बात हमारे पास में क्या आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट वो किसके अकॉर्डिंग की गई है? वो किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट के अकॉर्डिंग की गई है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस. The distribution of currents in different branches is accordance with Kirchhoff's first law.
the distribution of currents in different branches the distribution of currents in different branches is accordance with किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ KFL। ठीक है, ये चीजें जो है हमारे पास में है, इसे कंस्ट्रक्शन में आ गई तो आपको पता लग जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर्स होते हैं और ये रजिस्टर्स जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होते हैं, जिनमें से हम एक अननोन रेजिस्टेंस होता है S, और इस S की वैल्यू हम 3 नॉन रजिस्टर्स P, Q और R के टर्म्स में हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इस प्रिंसिपल को हम अंडरस्टैंड करें तो देखिए, सबसे पहले हम की K1 इंजर्ट करें, आफ्टर इट की K2 इंजर्ट करें, तब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है इसका। पहले की K1 इंजर्ट की, उसके बाद में की जो है वो K2 इंजर्ट की, तो करंट फ्लो होने लगेगी। लेकिन हम P, Q, R एंड S, ये जो 4 रजिस्टर्स हैं, इनको हम इस प्रकार से अरेंज करें, कैसे कि इस BD पोर्शन में करंट फ्लो ना हो, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे, तब हम ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। तब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देने की बात है। पहले की K1, आफ्टर इट की K2 इंजर्ट करें, P, Q, R और S की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करें कि BD पोर्शन में करंट फ्लो ना हो, मींस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। और इस कंडीशन में P/Q इक्वल R/S होता है कि P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S की इक्वल होती है। तो फिर सिंपल से वर्ड में मैं एक बात कह सकता हूं कि यदि मान लीजिए कि P, Q और R और S जो रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं, कितना P की वैल्यू 1, ठीक, और Q की वैल्यू जो है वो भी हमारे Q की वैल्यू हमारे पास में 2 हो जाए। तो नाउ P1 ओम, Q2 ओम, और ये मैं 3 ओम और ये मैं 6 ओम ले लूं, तो अब आप देख सकते हो 1/2, 3/6 मीन्स 1/2। तो इसका रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल आ गया। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। यदि हम यहाँ 1 ओम 2 ओम रख दें, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम रख दें, तो फिर इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का भी रेशियो 1/2 होगा। इस केस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसा अरेंजमेंट रजिस्टर्स का किया जा सकता है कि उन अरेंजमेंट के लिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में ये बैलेंस कंडीशन में होगा और P/Q किसके इक्वल हो जाएगा, R/S के। और जब P/Q इक्वल R/S हो गया तो आप इस फॉर्मूले से अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है हम इसका जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट टाइम पर हम देखेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही, आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।